Hello everybody. So I received this doubt in the Telegram group of CS Executive Company Law Doubt Clearing Group. So basically there is this question, and in this question the balance sheet of a company is given where the paid up share capital of the company is 100 lakhs. The reserves and surplus data is general reserve 50 lakhs, SPA 25 lakhs, revaluation reserve 25 lakhs, total of 200 lakhs. And in the borrowing side, there is long term borrowing of 125 lakhs, short term borrowings of 50 lakhs, and temporary loan which is used for construction of building is 25 lakh. Total of 200 lakh is loan. So this is your equity and this is your loan. Now the question is, the board of director further want to borrow a sum of 50 lakhs as a long term loan. So further the board want to borrow 50 lakh as a long term loan without obtaining the members of the general meeting, means without taking approval of the shareholders, by way of special resolution. Advise the board about the validity of this proposal and what will be your answer if it is a private limited company. So this is a very good question, and as soon as we are asking about borrowing, like whether board can do the borrowing or not, one section should hit in your head, and that section is bro 181C, which talks about the limit of borrowing. So for explaining this question, first I have to give you a quick recap of your section 181C. Basically what does section 180 says? Section 180 says that board can exercise following power only by passing a special resolution, and 181C talks about borrowing. So there is a limit given that if your borrowing is more than this limit, this is the limit, and if your borrowing is more than this limit, then compulsorily you have to take approval by way of special resolution, right? So board cannot borrow if the borrowing is more than this limit without taking the approval of special resolution. Now what is the limit? Your existing borrowing plus your proposed borrowing. If it is more than your paid up capital, free reserve and SPA, then you compulsory have to pass a special resolution. Then only you can do the borrowing. But there is one exception, that temporary loan is not included in the borrowing. Like if you are taking temporary loan, आप temporary loan ले रहे हो तो वो इस borrowing में include नहीं होगा. What is temporary loan? Temporary loan means any loan which is repayable on demand on within 6 months. मतलब ऐसा लोन जो आप 6 महीने के अंदर वापस कर देते हो उसको अपन borrowing नहीं मानते हो, शॉर्ट टर्म लोन है, वो 6 महीने के अंदर वापस कर दोगे आप, तो शॉर्ट टर्म लोन को हम इसमें काउंट नहीं करते हैं. दूसरी बात, इसका भी एक एक्सेप्शन है कि भले ही वो शॉर्ट टर्म लोन हो, भले ही वो आप 6 महीने के अंदर रीपे कर दोगे, लेकिन अगर उससे आप कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर कर देते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी मशीन खरीद लिया, लैंड खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद लिया, कोई फिक्स एसेट खरीद लेते हो, तो इफ इवन इफ इट्स अ टेम्पररी लोन, इवन इफ इट्स लाइक अ शॉर्ट टर्म लोन विच इज रीपेबल ऑन डिमांड, बट इफ यू आर यूजिंग दैट लोन फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन दैट केस दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज टेम्पररी लोन, मतलब उसको बोरोइंग में कंसिडर कर लिया जाएगा. आई एम रिपीटिंग अगेन, if there is any loan, even though if it is repayable within 6 months, but if that loan is incurred for capital expenditure, in such a case that loan will not be considered as temporary loan and उसको फिर हम borrowing consider करेंगे. तो I hope ये पूरा पिक्चर आपको 181C का क्लियर हो गया है. अब इस पिक्चर को समझ के जब अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. सबसे पहले आपकी लिमिट क्या है बोरोइंग की? आपकी लिमिट है पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस SPA. इतना तक आप टोटल बोरोइंग कर सकते हैं बिना स्पेशल रेजोल्यूशन पास किए, विदाउट पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन. तो ये तो बहुत लड्डू है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये हो गया आपका पेड अप कैपिटल 100 लाख का, प्लस जनरल रिजर्व. फ्री रिजर्व में आता है, यस जनरल रिजर्व इज अ फ्री रिजर्व, तो आपका जनरल रिजर्व आ जाएगा. नेक्स्ट इज SPA हो जाएगा प्लस 25 लैक्स. रिवैल्यूएशन रिजर्व, ब्रो रिवैल्यूएशन रिजर्व इज नेवर 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 जनरल रिजर्व, so revaluation will not be included in free reserve. Revaluation reserve is not a free reserve. So what is your total of paid up capital plus free reserve plus SPA? It's your 100 lakhs plus 50 lakhs plus 25 lakhs. So basically your limit is 175 lakhs. So आप टोटल मिलाकर के आपका एग्जिस्टिंग बोरोइंग प्लस प्रपोज बोरोइंग अगर 175 lakhs तक होता है तो ठीक है, सिर्फ बोर्ड BR पास करके कर सकते हैं. बट इफ योर टोटल एग्जिस्टिंग लोन प्लस प्रपोज लोन इज मोर देन 175 लाख, उस केस में आपको मैंडेटली SR की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, सिर्फ BR पास करके नहीं कर सकते. समझ में आया? यस मैडम. नाउ लेट्स सी लोन कितना है आपका एग्जिस्टिंग लोन कितना है? योर ऑलरेडी लॉन्ग टर्म लोन इज 125 लैक्स. इसको अपन दूसरा कलर ले लेते हैं, चलो ग्रीन कलर ले लेते हैं. योर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोन इज 125 लैक्स. देर इज अ कैश क्रेडिट. प्रो कैश क्रेडिट इज
अ टेम्पररी लोन, कैश क्रेडिट एक टेम्पररी लोन होता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, तो इसको आप बोरोइंग में कंसिडर नहीं करोगे क्योंकि ये टेम्पररी लोन है. कैश क्रेडिट ये आपका टेम्पररी लोन होता है, TL. नाउ देर इज अनदर टेम्पररी लोन बट वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग. सो मैंने आपको बताया ना, इवन इफ इट्स अ टेम्पररी लोन बट इफ यू आर यूजिंग इट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, इफ यू आर यूजिंग इट फॉर एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर, फॉर परचेजिंग एनी फिक्स्ड एसेट, in that case it will be considered as borrowing, and yes, this will be included in your borrowing. So how much is your existing borrowing? If I tell you how much is your existing borrowing, so your existing borrowing is equal to 125 lakhs plus 25 lakhs, that is 150 lakh. 150 हो गया, ओके. लिमिट कितना है? लिमिट है 175 लाख. एंड एग्जिस्टिंग कितना हो गया? एग्जिस्टिंग हो गया 150 लाख. मतलब अब आप और कितना ले सकते हैं बिना SR पास किए? अप टू द लिमिट, दैट इज मैक्सिमम 25 lakhs. नाउ दिस कंपनी कैन बोरो मैक्सिमम 25 lakhs विदाउट पासिंग SR. बट हाउएवर इफ इट वांट्स टू बोरो मोर देन 25 lakhs, देन हमें कंपल्सरी स्पेशल रेजोल्यूशन की अप्रूवल लेनी पड़ेगी. बोर्ड नहीं कर सकते. हम चाहते कितना है? हियर इट इज सेड दैट बोर्ड वांट टू बोरो 50 lakhs. सो बोर्ड 50 lakhs बोरो करना चाहते हैं. 50 lakhs बोरो करना चाहते हैं, तो अगर 50 lakhs बोरो करेंगे, एग्जिस्टिंग बोरोइंग कितनी है? एग्जिस्टिंग बोरोइंग प्लस प्रपोज्ड बोरोइंग कितना हो जाएगा? एग्जिस्टिंग बोरोइंग है हमारी 150 लाख और हम प्रपोज कितना कर रहे हैं? और 50 लाख. तो ये टोटल तो लिमिट से बढ़ जाएगा ना. लिमिट तो अपना 175 lakhs था और ये हो जाएगा 200 लाख. तो येस, इफ योर एग्जिस्टिंग बोरोइंग प्लस प्रपोज बोरोइंग इज मोर देन योर लिमिट paid up capital free reserve SPA, in that case you compulsorily have to take approval of shareholder by way of special resolution. So आपको फाइनल कंक्लूजन क्या देना है? एडवाइज द बोर्ड अबाउट द वैलिडिटी ऑफ दिस प्रपोजल. वैलिड तो नहीं है भैया, नो. योर आंसर शुड बी क्लियर कट, नो. इस केस में कंपल्सरी आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. बोर्ड का रेजोल्यूशन वैलिड नहीं है, बोर्ड का कंटेंशन वैलिड नहीं है. तो आपको आंसर तो समझ में आ गया. अब इसको लिखेंगे किस तरह से, देखो मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ. सबसे पहले ये केस लॉ वाला क्वेश्चन है, तो अगर आपका केस लॉ वाला क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ लॉ. उसके बाद आपको लिखना पड़ता है फैक्ट्स ऑफ द केस एंड एनालिसिस, एंड लास्ट में आपको लिखना पड़ता है कंक्लूजन. केस लॉ वाले क्वेश्चन. तो हाउ यू विल राइट इट? फर्स्ट यू हैव टू राइट द एप्लीकेबल प्रोविजन. हाउ यू विल राइट? यू विल राइट दिस लिमिट दैट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 181C, दिस इज द लिमिट ऑफ बोरोइंग, दैट इफ द एग्जिस्टिंग बोरोइंग प्लस प्रपोज बोरोइंग इज मोर देन दिस लिमिट, देन वी कंपल्सरीली हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, एक्सेप्शन दिस दिस दिस. दैट्स इट. ये वाला एक्सेप्शन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमारे केस लॉ के लिए रिलेवेंट नहीं है ना. हमारे केस लॉ के लिए रिलेवेंट ये वाला है, राइट. So first you will explain this applicable provision, that what is given in section 181C. After you are done with this, you have to change the paragraph and you have to explain this situation in a very precise manner, in a very brief manner, that our existing paid up capital free reserve SPA is 100 plus 50 plus 25, it is इतना, and your existing loan is this plus this. इसको हम include नहीं करेंगे, इसको include करेंगे. Then you will see, you have to calculate this proper existing borrowing is equals to 150 lakh. Now you have to show that yes, existing borrowing plus proposed borrowing is exceeding the limit. Then you have to give the final conclusion, and जो आपका final conclusion होगा वो one liner एकदम crisp conclusion होना चाहिए. Thus, on the basis of the above reason, the board, the validity of the proposal of board is not valid because they have to compulsorily take the approval of special resolution. I hope that this question is crystal clear to you and you are able to understand, as well as you are able to understand how to write this question in the exam. Next is एक और question है, इसमें इसको भूल नहीं जाना रे. What will be your answer if it is a प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? सो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहती हूँ, यहाँ बहुत बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है दैट दिस सेक्शन 180 इज नॉट एप्लीकेबल टू अ प्राइवेट कंपनी. 180 इज नॉट एप्लीकेबल टू अ प्राइवेट कंपनी, विच मीन्स दैट इफ अगर ये प्राइवेट कंपनी होती तो SR नहीं लगता और बोर्ड का रेजोल्यूशन बिल्कुल वैलिड होता. सो हाउ यू वुड हैव रिटन दिस आंसर? यू वुड हैव रिटन दैट सिंस सेक्शन 180 इज नॉट एप्लीकेबल टू अ प्राइवेट कंपनी, दैट इज वाई इफ इट इज अ प्राइवेट कंपनी, देन द वैलिडिटी ऑफ द proposal of the board will be perfectly valid and no special resolution will be required. So this is how your flow of answer should go and how you should write your answer. I hope that this video is helpful for you. Do let me know in case you have any other doubt. Thank you. Bye bye.